بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا ماہر جاسوس اور سراغ رساں علی بن سفیان سلطان کا حکم پورا کرنے کے لیے جا چکا تھا۔ اس نے فوراً ایک قاصد بحیرہ روم کے کیمپ کی طرف اس پیغام کے ساتھ روانہ کر دیا کہ رابن اس کے 4 ساتھیوں اور لڑکیوں کو گھوڑوں یا اونٹوں پر سوار کر کے 20 محافظوں کے پہرے میں دارالحکومت کو بھیج دو۔ قاصد کو روانہ کر کے اس نے اپنے ساتھ 6-7 سپاہی لیے اور کماندار بالیان کی تلاش میں نکل گیا۔ اس نے ان سوڈانی کمانداروں سے جو باہر بیٹھے تھے بالیان کے متعلق پوچھ لیا تھا۔ سب نے کہا تھا کہ اسے لڑائی میں کہیں بھی نہیں دیکھا گیا اور نہ ہی وہ اس فوج کے ساتھ گیا تھا جو بحیرہ روم کی طرف سلطان کی فوج پر حملہ کرنے کے لیے بھیجی گئی تھی۔ علی بن سفیان بالیان کے گھر گیا تو وہاں اس کی بوڑھی خادماؤں کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ انہوں نے بتایا کہ بالیان کے گھر میں 5 لڑکیاں تھیں، ان میں سے جس کی عمر ذرا زیادہ ہو جاتی تھی اسے وہ غائب کر دیتا اور اس کی جگہ جوان لڑکی لے آتا تھا۔ ان خادماؤں نے بتایا کہ بغاوت سے پہلے اس کے پاس ایک فرنگی لڑکی آئی تھی جو غیر معمولی طور پر خوبصورت اور ہوشیار تھی۔ بالیان اس کا غلام ہو گیا تھا۔ بغاوت کے 1 روز بعد جب سوڈانیوں نے ہتھیار ڈال دیے تو بالیان رات کے وقت گھوڑے پر سوار ہوا، دوسرے گھوڑے پر اس فرنگی لڑکی کو سوار کیا اور معلوم نہیں دونوں کہاں روانہ ہو گئے۔ ان کے ساتھ 7 گھوڑ سوار تھے۔ حرم کی لڑکیوں کے متعلق خادمہ نے بتایا کہ وہ گھر میں جو ہاتھ لگا اٹھا کر چلی گئی ہیں۔ علی بن سفیان وہاں سے واپس ہوا تو ایک گھوڑا سر پر دوڑتا ہوا آیا اور علی بن سفیان کے سامنے رکا۔ اس پر فہر المصری سوار تھا۔ وہ کود کر گھوڑے سے اترا اور ہامتی کامتی آواز میں بولا، میں آپ کے پیچھے آیا ہوں، میں بھی اسی بدبخت بالیان اور اس کافر لڑکی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ میں ان سے انتقام لوں گا۔ جب تک ان دونوں کو اپنے ہاتھوں قتل نہیں کر لوں گا مجھے چین نہیں آئے گا۔ میں جانتا ہوں کہ وہ کدھر گئے ہیں۔ میں نے ان کا پیچھا کیا ہے لیکن ان کے ساتھ 7 مسلح محافظ تھے، میں اکیلا تھا۔ وہ بحیرہ روم کی طرف جا رہے ہیں مگر عام راستے سے ہٹ کر جا رہے ہیں۔ اس نے علی بن سفیان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، خدا کے لیے مجھے صرف 4 سپاہی دے دیں، میں ان کے تعاقب میں جاؤں گا اور انہیں ختم کر کے آؤں گا۔ علی بن سفیان نے اسے اس وعدے سے ٹھنڈا کیا کہ وہ اسے 4 کی بجائے 20 سوار دے گا۔ وہ ساحل سے آگے اتنی جلدی نہیں جا سکتے، تم میرے ساتھ رہو۔ علی بن سفیان مطمئن ہو گیا کہ یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ وہ کس طرف گئے ہیں۔ اس وقت بالیان اسی سلیبی لڑکی کے ساتھ جس کا نام موبی تھا ساحل کی طرف جانے والے عام راستے سے ہٹ کر دور جا چکا تھا۔ ان علاقوں سے وہ اچھی طرح واقف تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ سوڈانی فوج اور اس کے کمانداروں کو صلاح الدین ایوبی نے معافی دے دی ہے۔ ایک تو وہ سلطان کے عتاب سے بھاگ رہا تھا اور دوسرا یہ کہ وہ موبی جیسی حسین لڑکی کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ دنیا کی حسین ترین لڑکیاں صرف مصر اور سوڈان میں ہی ہیں، مگر اٹلی کی اس لڑکی کے حسن اور دلکشی نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ اس کی خاطر وہ اپنا رتبہ، اپنا مذہب اور اپنا ملک ہی چھوڑ رہا تھا، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ موبی اس سے جان چھڑوانے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ جس مقصد کے لیے آئی تھی وہ ختم ہو چکا تھا، گو کہ مقصد تباہ ہو گیا تھا، تاہم موبی اپنا کام کر چکی تھی۔ اس کے لیے اس نے اپنے جسم اور اپنی عزت کی قربانی دی تھی۔ وہ ابھی تک اپنی عمر سے دگنی عمر کے آدمی کی عیاشی کا ذریعہ بنی ہوئی تھی۔ بالیان اس ہوش فہمی میں مبتلا تھا کہ موبی اسے بری طرح چاہتی ہے، مگر موبی اس سے نفرت کرتی تھی۔ وہ چونکہ مجبور تھی اس لیے اکیلی بھاگ نہیں سکتی تھی۔ وہ اس مقصد کے لیے بالیان کو ساتھ لیے ہوئے تھی کہ اسے اپنی حفاظت کی ضرورت تھی۔ اسے بحیرہ روم پار کرنا تھا یا رابن تک پہنچنا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ رابن اور اس کے ساتھی جو تاجروں کے بھیس میں تھے پکڑے جا چکے ہیں۔ اس مجبوری کے تحت وہ بالیان کے ہاتھ میں کھلونا بنی ہوئی تھی۔ وہ کئی بار اسے کہہ چکی تھی کہ تیز چلو اور پڑاؤ کم کرو ورنہ پکڑے جائیں گے، لیکن بالیان جہاں اچھی جگہ دیکھتا رک جاتا۔ اس نے شراب کا ذخیرہ اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ ایک رات موبی نے ایک ترکیب سوچی۔ اس نے بالیان کو اتنی زیادہ پلا دی کہ وہ بے سدھ ہو گیا۔ ان کے ساتھ جو 7 محافظ تھے وہ کچھ پرے سو گئے تھے۔ موبی نے دیکھا تھا کہ ان میں سے ایک ایسا ہے جو جوان ہے اور سب پر چھایا رہتا ہے۔ بالیان زیادہ تر اسی کے ساتھ ہر بات کرتا تھا۔ موبی نے اسے جگایا اور تھوڑی دور لے گئی۔ اسے کہا، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں اور یہاں کیوں آئی تھی۔ میں تم لوگوں کے لیے مدد لائی تھی تاکہ تم صلاح الدین ایوبی جیسے غیر ملکیوں سے آزاد ہو سکو، مگر تمہارا یہ کماندار بالیان اس قدر عیاش آدمی ہے کہ اس نے شراب پی کر بدمست ہو کر میرے جسم کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ بجائے اس کے کہ وہ عقل مندی سے بغاوت کا منصوبہ بناتا اور فتح حاصل کرتا، اس نے مجھے اپنے حرم کی لونڈی بنا لیا اور اندھا دھند فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایسی لاپرواہی سے حملہ کروایا کہ ایک ہی رات میں تمہاری اتنی بڑی فوج ختم ہو گئی۔
तुम्हारी शिकस्त का जिम्मेदार ये शख्स है। अब ये मेरे साथ सिर्फ अय्याशी के लिए जा रहा है और मुझे कहता है कि मैं इसे समुंदर पार ले जाऊं, उसे अपनी फौज में रुतबा दिलाऊं और उसके साथ शादी कर लूं। मगर मुझे इस शख्स से नफरत है। मैंने फैसला कर लिया है कि अगर मुझे शादी करनी है और अपने मुल्क में ले जाकर उसे फौज में रुतबा दिलाना है, तो मुझे ऐसे आदमी का इंतखाब करना चाहिए जो मेरे दिल को अच्छा लगे, और वो आदमी तुम हो। तुम जवान हो, दलेर हो और अक्लमंद हो। मैंने जब से तुम्हें देखा है तुम्हें चाह रही हूँ। मुझे इस बूढ़े से बचाओ, मैं तुम्हारी हूँ। समंदर पार ले चलो, फौज का रुतबा और मालो दौलत तुम्हारे कदमों में होगा, मगर इस आदमी को यहीं ख़त्म कर दो। वो सोया हुआ है, इसे कत्ल कर दो और आओ निकल चलें। उसने मुहाफिज के गले में बाहें डाल दी। मुहाफिज उसके हुस्न में गिरफ्तार हो गया। उसने दीवानावार लड़की को अपने बाजुओं में जकड़ लिया। मोबी इस जादूगरी की माहिर थी, वो जरा परे हट गई। मुहाफिज उसकी तरफ बढ़ा तो अकब से एक बर्ची उसकी पीठ में उतर गई। उसके मुंह से हाय निकली और वह पहलू के बल लड़क गया। बर्ची उसकी पीठ से निकली और उसे आवाज सुनाई दी, नमक हराम को जिंदा रहने का हक नहीं। लड़की की चीख निकल गई। वो उठी और इतना ही कहने पाई थी कि तुमने इसे कत्ल कर दिया है, कि पीछे से एक हाथ ने उसके बाजू को जकड़ दिया और झटका देकर अपने साथ ले गया। उसे बालियान के पास फेंक कर कहा, हम इस शख्स के पाले हुए हैं, हमारी जिंदगी इसी के साथ है। तुम हम में से किसी को इसके खिलाफ गुमराह नहीं कर सकती। जो गुमराह हुआ उसने सजा पा ली है। बालियान शराब के नशे में बेहोश पड़ा था। तुम लोगों ने यह भी सोचा है कि तुम कहाँ जा रहे हो? मोबी ने पूछा। समंदर में डूबने, एक ने जवाब दिया। तुम्हारे साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। जहां तक बालियान जाएगा हम वहीं तक जाएंगे। और वो दोनों जाकर लेट गए। दूसरे दिन बालियान जागा तो उसे रात का वाकया बताया गया। मोबी ने कहा कि वो मुझे जान की धमकी देकर अपने साथ ले गया था। बालियान ने अपने मुहाफिजों को शाबाश दी, मगर उनकी ये बात सुनी अनसुनी कर दी कि यह लड़की उसे गुमराह करके ले गई थी और उन्होंने उसकी बातें सुनी थी। वो मोबी के हुस्न और शराब में बदहोश होकर सब भूल गया। मोबी ने उसे एक बार फिर कहा कि तेज चलना चाहिए, मगर बालियान ने परवाह ना की और वो अपने आप में नहीं था। मोबी अब आज़ाद नहीं हो सकती थी। उसने देख लिया था कि ये लोग अपने दोस्तों को भी कत्ल करने से गुरेज नहीं करते। अली बिन सुफियान ने न जाने क्या सोचकर उनका ताक़ुब ना किया। बगावत के बाद के हालात को मामूल पर लाने के लिए वो सुल्तान अयूबी के साथ बहुत मसरूफ़ हो गया था। साहिल के कैंप से राबन, उसके चारों साथियों और 6 लड़कियों को 15 मुहाफिजों की गार्ड में काहिरा के लिए रवाना कर दिया गया। कासद उनसे पहले रवाना हो चुका था। कैदी ऊँटों पर थे और गार्ड घोड़ों पर। वो मामूल की रफ्तार पर जा रहे थे और मामूल के मुताबिक पड़ाव कर रहे थे। वो बेखौफो खतर जा रहे थे। वहाँ किसी दुश्मन के हमले का डर नहीं था। कैदी निहत्थे थे और उनमें 6 लड़कियां थीं। किसी के भागने का डर नहीं था। मगर वो ये भूल रहे थे कि ये कैदी तरबियत याफ्ता और लड़ाके जासूस थे, और उनमें से जो ताजरों के भेस में पकड़े गए थे वो चुने हुए तीरंदाज और तेगजन थे। और लड़कियां महज लड़कियां नहीं थीं जिन्हें वो कमज़ोर औरत ज़ात समझ रहे थे। उन लड़कियों की जिस्मानी दिलकशी, यूरोपी रंगत की जाज़बियत, जवानी और उनकी बेहयाई ऐसे हथियार थे जो अच्छे अच्छे जाबर हुक्मरानों से हथियार डलवा लेते थे। मुहाफिजों का कमांडर मिस्री था। उसने देखा कि उन 6 में से एक लड़की उसकी तरफ देखती रहती है, और वो जब उसे देखता है तो लड़की के होंठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। यह मुस्कुराहट उस मिस्री को मौम कर रही थी। शाम के वक्त उन्होंने पहला पड़ाव किया तो सबको खाना दिया गया। उस लड़की ने खाना ना खाया। कमांडर को बताया गया तो उसने लड़की के साथ बात की। लड़की उसकी जुबान बोलती और समझती थी। लड़की के आंसू निकल आए। उसने कहा कि वो उसके साथ अलहदगी में बात करना चाहती है। रात को जब सो गए तो कमांडर उठा और उसने लड़की को जगाया और अलग ले गया। लड़की ने उसे बताया कि वो एक मजलूम लड़की है। उसे फौजियों ने एक घर से अगवा किया और अपने साथ रखा। फिर उसे जहाज में अपने साथ लाए, जहां वो एक अफसर की दाश्ता बनी रही। दूसरी लड़कियों के मुतल्लिक उसने बताया कि उनके साथ उसकी मुलाकात जहाज में हुई थी। उन्हें भी अगवा करके लाया गया था। अचानक जहाज़ों पर आग बरसने लगी और जहाज जलने लगे। उन लड़कियों को एक कश्ती में बिठाकर समंदर में डाल दिया गया। कश्ती उन्हें साहिल पर ले आई, जहां उन्हें जासूस समझकर कैद में डाल दिया गया। ये वही कहानी थी जो ताजरों के भेस में सलीबी जासूसों ने उन लड़कियों के मुतल्लिक सलाहुद्दीन अयूबी को सुनाई थी। मिस्री गार्ड कमांडर को मालूम नहीं था। वो ये कहानी पहली बार सुन रहा था। उसे तो हुक्म मिला था कि ये खतरनाक जासूस हैं, इन्हें कहरा ले जाकर सुल्तान के एक खुफिया महकमे के हवाले करना है। इस हुक्म के पेश नज़र वो उन लड़कियों की या उस लड़की की कोई मदद नहीं कर सकता था। उसने लड़की को अपनी मजबूरी बता दी। उसे मालूम नहीं था कि लड़की के तरकिश में अभी बहुत तीर बाकी हैं। लड़की ने कहा, मैं तुमसे कोई मदद नहीं मांगती,
तुम अगर मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें रोक दूंगी, क्योंकि तुम मुझे इतने अच्छे लगते हो कि मैं अपनी खातर तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहती। मेरा कोई गमख्वार नहीं, मैं उन लड़कियों को बिल्कुल नहीं जानती और इन आदमियों को भी नहीं जानती। तुम मुझे रहम दिल भी लगते हो और मेरे दिल को भी अच्छे लगते हो, इसलिए तुम्हें ये बातें बता रही हूँ। इतनी खूबसूरत लड़की के मुंह से इस किस्म की बातें सुनकर कौन सा मर्द अपने आप में रह सकता है। ये लड़की मजबूर भी थी, रात की तन्हाई भी थी। मिस्री की मर्दानगी पिघलने लगी। उसने लड़की के साथ दोस्ताना बातें शुरू कर दी। लड़की ने एक और तीर चलाया और सलाहुद्दीन अयूबी के किरदार पर जहर उगलने लगी। उसने कहा, मैंने तुम्हारे गवर्नर सलाहुद्दीन अयूबी को मजलूमियत की यह कहानी सुनाई थी। मुझे उम्मीद थी कि वो मेरे हाल पर रहम करेगा, मगर उसने मुझे अपने खेमे में रख लिया और शराब पीकर मेरे साथ बदकारी करता रहा। उस वहशी ने मेरा जिस्म तोड़ दिया है। शराब पीकर वो इतना वहशी बन जाता है कि उसमें इंसानियत रहती ही नहीं। मिस्री का खून खोलने लगा। उसने बिदक कर कहा, हमें कहा गया था कि सलाहुद्दीन अयूबी मोमन है, फरिश्ता है, शराब और औरत से नफरत करता है। मुझे अब उसी के पास ले जाया जा रहा है। लड़की ने कहा, अगर तुम्हें यकीन ना आए तो रात को देख लेना कि मैं कहाँ रहूंगी। वो मुझे कैद खाने में नहीं डालेगा, अपने हरम में रख लेगा। मुझे उस आदमी से डर आता है। इस किस्म की बहुत सी बातों से लड़की ने उस मिस्री के दिल में सलाहुद्दीन अयूबी के खिलाफ नफरत पैदा कर दी और वह पूरी तरह मिस्री पर छा गई। उसके दिल और दिमाग पर कब्जा कर लिया। मिस्री को मालूम नहीं था कि यही उन लड़कियों का हथियार है। लड़की ने आखिर में कहा, अगर तुम मुझे इस जलील जिंदगी से निजात दिला दो तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी और मेरा बाप तुम्हें सोने की अशरफियों से माला माल कर देगा। उसने उसका तरीका यह बताया कि मेरे साथ समुंदर पार भाग चलो, कश्तियों की कमी नहीं। मेरा बाप बहुत अमीर आदमी है, मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगी और मेरा बाप तुम्हें नहायत अच्छा मकान और बहुत सी दौलत देगा, तुम तजारत कर सकते हो। मिस्री को यह बात याद रह गई कि वो मुसलमान है। उसने कहा कि वो अपना मजहब तर्क नहीं कर सकता। लड़की ने जरा सोचकर कहा, मैं तुम्हारे लिए अपना मजहब छोड़ दूंगी। उसके बाद वो फरार और शादी का प्रोग्राम बनाने लगे। लड़की ने उसे कहा, मैं तुम पर जोर नहीं देती, अच्छी तरह सोच लो। मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ कि मेरे दिल में तुम्हारी जो मोहब्बत पैदा हो गई है उतनी तुम्हारे दिल में भी पैदा हुई है या नहीं। अगर तुम मुझे कबूल करने पर आमादा हो सकते हो तो सोच लो और कोशिश करो कि काहिरा तक हमारा सफ़र लंबा हो जाए। हम एक बार वहां पहुंच गए तो फिर तुम मेरी बू भी नहीं सूंघ सकोगे। लड़की का मकसद सिर्फ इतना सा था कि सफ़र लंबा हो जाए और 3 दिनों की बजाय 6 दिन रास्ते में ही गुजर जाएं। उसकी वजह यह थी कि राबन और उसके साथी फरार की तरकीबें सोच रहे थे। वो इस कोशिश में थे कि रात को सोए हुए मुहाफिजों के हथियार उठाकर उन्हें कत्ल कर दिया जाए, जो नामुमकिन सा काम था, या उनके घोड़े चुरा कर भागा जाए। अभी तो पहला ही पड़ाव था। उनकी ज़रूरत यह थी कि सफ़र लंबा हो जाए ताकि इत्मीनान से सोच सकें और अमल कर सकें। इस इस मकसद के लिए उन्होंने इस लड़की को इस्तेमाल किया कि वो मुहाफिजों के कमांडर को कब्जे में ले ले। लड़की ने पहली मुलाकात में ही यह मकसद हासिल कर लिया और मिस्री को मुंह मांगी कीमत अपने जिस्म की सूरत में दे दी। मिस्री कोई ऐसा बड़ा रुतबे वाला आदमी नहीं था, मामूली सा ओहदेदार था। उसने कभी ख्वाब में भी इतनी हसीन लड़की नहीं देखी थी। कहाँ एक जीती जागती लड़की जो उसके तसव्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत थी, उसकी लौंडी बन गई थी। वो अपना आप, अपना फर्ज और अपना मजहब ही भूल गया। वो एक लम्हे के लिए भी लड़की से अलग नहीं होना चाहता था। इस पागलपन में उसने सुबह के वक्त पहला हुक्म यह दिया कि जानवर बहुत थके हुए हैं, लिहाजा आज सफ़र नहीं होगा। मुहाफिजों और शुतरबानों को इस हुक्म से बहुत खुशी हुई। वो महाज की सहतियों से उकताए हुए थे। उन्हें मंजिल तक पहुंचने की कोई जल्दी नहीं थी। वो दिन भर आराम करते रहे, गपशप लगाते रहे और उनका कमांडर उस लड़की के पास बैठा बदमस्त होता रहा। दिन गुजर गया, रात आई और जब सब सो गए तो मिस्री लड़की को साथ लिए दूर चला गया। लड़की ने उसे आसमान पर पहुंचा दिया। सुबह जब ये काफिला चलने लगा तो मिस्री कमांडर ने रास्ता बदल दिया। अपने दस्ते से उसने कहा कि इस तरफ अगले पड़ाव के लिए बहुत खूबसूरत जगह है, करीब एक गांव भी है जहां मुर्गियां और अंडे मिल जाएंगे। उसका दस्ता इस पर भी खुश हुआ कि कमांडर उन्हें अय्याशी करा रहा है। अलबत्ता उस दस्ते में 2 अस्करी ऐसे भी थे जो कमांडर की इन हरकतों से खुश नहीं थे। उन्होंने उसे कहा कि हमारे पास खतरनाक कैदी हैं, ये सब जासूस हैं, इन्हें बहुत जल्दी हुकूमत के हवाले कर देना चाहिए। बिला वजह सफ़र लंबा करना ठीक नहीं। लेकिन मिस्री ने उन्हें यह कहकर चुप करवा दिया कि यह मेरी जिम्मेदारी है कि जल्दी पहुंचूं या देर से। जवाब तलबी हुई तो मुझसे होगी। दोनों खामोश हो गए, लेकिन वो अलग जाकर आपस में खुसर फुसर करते रहे। दोपहर के बाद उन्हें दूर आगे बहुत से गिद्ध उड़ते और उतरते नजर आए।
यही इसकी निशानी थी कि वहाँ कोई मुर्दार है। वो इलाका मट्टी और रेत के टीलों का था, सहराई दरख्त भी थे। चलते चलते वो उन टीलों में दाखिल हो गए। रास्ता ऊपर होता गया और एक बुलंद जगह से उन्हें एक मैदान नजर आया, जहाँ गिद्धों के गोल उतरते हुए शोर बर्पा कर रहे थे। जरा और आगे गए तो नजर आया कि लाशें हैं और बदबू भी थी। ये उन सूडानियों की लाशें थीं जो बहीरा रूम के साहल पर मुकीम सुल्तान अयूबी की फौज पर हमला करने चले थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के जांबाज सवारों ने रातू को उनके अकबी हिस्से पर हमले कर करके ये कुछ तो खून किया और सूडानी फौज को तितर बितर कर दिया था। यहाँ से आगे मीलों वसत पर लाशें बिखरी हुई थीं। सूडानियों को अपनी लाशें उठाने की मोहलत नहीं मिली थी। कैदियों और मुहाफिजों का काफिला चलता रहा और जरा सा रुख बदल कर लाशों और गिद्धों से हट गया। काफिला जब वहां से गुजर रहा था तो उन्होंने देखा कि लाशों के इर्द गिर्द उनके हथियार भी बिखरे हुए थे। उनमें कमाने और तरकश थे और बर्छियां, तलवारें और ढाले भी थीं। कैदियों ने ये हथियार देख लिए। उन्होंने आपस में बातें की और राबन ने उस लड़की से कुछ कहा जिसने मिस्री कमांडर पर कब्जा कर रखा था। लाशें और हथियार दूर दूर तक फैले हुए थे। दाएं तरफ टीलों के करीब सरसब्ज जगह थी। पानी भी नजर आ रहा था। सब्जा टीलों के ऊपर तक गया हुआ था। लड़की ने कमांडर को इशारा किया तब वो उसके करीब चला गया। लड़की ने कहा, यह जगह बहुत अच्छी है, यहीं रुक जाते हैं। मिस्री ने काफिले का रुख फेर दिया और सरसब्ज टीले के करीब पानी के चश्मे पर जा रोका। रात यहीं बसर करनी थी। सब घोड़ों और ऊंटों से उतरे। जानवर पानी पर टूट पड़े। रात गुजारने के लिए अच्छी जगह देखी जाने लगी। दो टीलों के दरमियान जगह कुशादा भी थी और वहां सब्जा भी था। यही जगह मुंतहब कर ली गई। जब रात का अंधेरा गहरा हुआ तो सब सो गए। मिस्री जाग रहा था और लड़की भी जाग रही थी। उस रात उसे खास तौर पर जागना और मिस्री कमांडर को पूरी तरह मदहोश करना था। उसे जब खर्राटों की आवाजें सुनाई देने लगी तो वो मिस्री के पास चली गई। उसी लड़की की खातर वो सबसे अलग और दूर हटकर लेटा था। लड़की उसे टीले की ओट में ले गई और वहां से जरा और दूर जाने की ख्वाहिश जाहिर की। मिस्री उसकी ख्वाहिशों का गुलाम हो गया था। उसे एहसास तक न हुआ कि आज रात लड़की उसे एक खास मकसद के लिए दूर ले जा रही है। वो उसके साथ साथ चलता रहा और लड़की उसे 3 टीलों से भी परे ले गई। वो रुकी और मिस्री को बाहों में ले लिया। मिस्री बेखुद हो गया। उधर राबन ने जब देखा कि कमांडर जा चुका है और दूसरे मुहाफिज गहरी दिन सोए हुए हैं तो उसने लेटे लेटे अपने एक साथी को जगाया। उसने साथ वाले को जगाया। इस तरह राबन के चारों साथी जाग उठे। मुहाफिज उनसे जरा दूर सोए हुए थे। मिस्री कमांडर को लड़की ने इतना बेपरवाह कर दिया था कि रात को वो संतरी खड़ा नहीं करता था। पहले राबन पेट के बल रेंगता हुआ मुहाफिजों से दूर चला गया। उसके बाद उसके चारों साथी भी चले गए। टीले की ओट में होकर वो तेज तेज चलने लगे और लाशों तक पहुंच गए। टटोल टटोल कर उन्होंने 3 कमाने और तरकीश उठाए और एक एक बर्छी उठा ली। इसी मकसद के लिए उन्होंने लड़की से कहा था कि वो कमांडर से कहे कि यहाँ पड़ाव किया जाए।